This is our yearly schedule, okay? But Okay. that we can modify it according to our needs. We are going to study in a phase-wise manner. The first phase is the Bunyad phase, basic foundation phase. We are going to cover the basic subject plus basic source plus reference source. क्वालिटी मॉडरेसी इकोनॉमी ज्योग्राफी एनवायरमेंट के बेसिक एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं. Okay. फर्स्ट राउंड क्या होगा हमारा इसमें? बेसिक एनसीईआरटी, NCRTs. Yeah. क्वालिटी मॉडरेसी इकोनॉमी ज्योग्राफी एनवायरमेंट, बस. Hmm. उसके बाद फिर उसके साइमल्टेनियसली चैप्टर वाइज एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और एनसीईआरटी खत्म होने के बाद उसके ऊपर का मेंटरशिप टेस्ट करेंगे. हमने आज डिस्कशन जैसे ऑनलाइन सेशन पे लिया है तो वैसे हम आगे सेशंस ले लेंगे वीक बाय वीक बेसिस पे, और उसमें एक सब्जेक्ट को उसका असेसमेंट होके फिर हम सेकंड सब्जेक्ट पे जाएंगे. हेलो आनंद, हाउ आर यू? Nice, sir. Fine, fine. Fine. Okay, so this is our orientation session, and in this orientation session, we are going to discuss the four agendas. Okay, the first agenda is to understand the student. Okay, Hmm. second agenda is what could be the schedule and strategy for the next 1.5 year. Okay, Okay. third agenda, what sources we need to take for the reading, and last one is the what is the target and how to read that target. Okay. Yeah. On these four agendas that we are going to discuss. Am I audible very clearly? Yeah. Sure. Ekdam. Okay. So let's start with the first of our agenda. Okay. So in the first agenda, initial level, yes, you can tell me that what is your 10th marks, 12th marks, and what is your graduation mark. If you have done any post-graduation or the study after the graduation, you can inform me that. Yeah. Hmm. So my 10th marks was I guess 85 around, and I scored 75 in my 12th. I am from PCM stream maths background, and right now I'm doing BA in economics first year. It's like BA economics honors BA first. Economics Honors first year. Yeah. Okay. And what could be, is there any exam has been done for your first semester of the first Uh, year? ना सर अभी complete अभी it will be कंप्लीट in February March it will be अभी तो internal exam हुई. इंटरनल एग्जाम चल रहा है. So, yeah, this is the second thing that uh, what subject that you have studied. Okay, till so far, uh, have you joined any coaching apart from CBS Delhi? Right. No, sir. Yes. I'm just Okay. beginning. So, and what is your optional subject? I have opted for philosophy, sir. Philosophy optional. Hmm. No worry. Are you planning to take the coaching for the philosophy? I don't know, sir, because I have went through the syllabus, the UPSC syllabus for it, and the books referred by the toppers and all that, and I've seen the topics, and I don't think that it specifically needs coaching. It can be done from YouTube videos and Yeah. reading. And Yes. No worry that. Okay. And just tell me that how much time you can give for the UPSC syllabus to read the UPSC study preparation के लिए आप कितना time दे सकते हो per at day? at present, I can give from 4 to 6 4 to between. 6 in between that, because sometimes exam is there, then you have हाँ वही सो तो quiz. फ्लक्चुएट हो जाएगा बट 4 to 6 आई कैन यस एवरी डे. So first agenda has been done, and I got the basic information, and also you have shared that 13 points questionnaire is there, na? So I also go through that, and I got to know. So let's move on our next agenda. What could be our schedule and strategy for the next 1.5 year? Okay. So Ananya, this is our Yes. yearly schedule. Okay. But Okay. that we can modify it according to our needs. Okay. Hmm. Yes. The phase one is the Bunyad phase. Okay. Means we are going to study in a phase-wise manner. The first phase is the Bunyad phase, basic foundation phase. Okay. So uh, in this, we are going to cover the five subjects: quality, modesty, economy, geography, and environment. Five subjects.
okay, in which we are going to cover the basic subject plus basic source plus reference source. Okay, Okay. the list of the basic source and the reference source has been provided to here also and in your portal also. That is on your Telegram link, Telegram also. Okay, so हमारा फर्स्ट फेज का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो बेसिक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, जो भी कॉन्सेप्ट है उसकी अंडरस्टैंडिंग, ये हमारा फर्स्ट टारगेट है। तो अंडरस्टैंडिंग कैसे हम इवेल्युएट करेंगे हमारी खुद की? तो जैसे हम एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो उसके साथ एनसीईआरटी का चैप्टर का एक्सरसाइज करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो फिर हमें समझ में आएगा कि एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट हमें कितने आए हैं, कितने। या सेकंड है मेंटोरशिप टेस्ट जो चैप्टर वाइज है, ये भी हम इसमें कर रहे हैं, ये आपके पोर्टल में अवेलेबल है। हाँ ओके, हाँ एनसीईआरटी चैप्टर वाइज एक्सरसाइज दैट इज अवेलेबल इन योर एनसीईआरटी। मेंटोरशिप टेस्ट ये आपकी चैप्टर वाइज एनसीईआरटी की भी है और रेफरेंस सोर्स की भी है। ओके, ये आपके पोर्टल पे। देन या सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दैट इज प्राइम प्रीलिम बेसिक टेस्ट इज आल्सो अवेलेबल इज दैट, जो हमारा एक जैसे पॉलिटी का बेसिक सोर्स और रेफरेंस सोर्स पढ़ के होगा तो हम उसके ऊपर बेसिक टेस्ट दे देंगे। ठीक है, ओके दो सर। बेसिक टेस्ट पर सब्जेक्ट है। उसके बाद मेंस पीवाईक्यू, अब ये इंपॉर्टेंट चीज हमें इसमें ऐड करनी है। जो मेंस के पीवाईक्यू यूपीएससी के स्पेशली फ्रॉम दी 1979 79 से लेकर 2012 तक, ये स्टैटिक बेस है, इसको हमें एज इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट आंसर्स लिखने हैं, ओके एज इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट आंसर्स हमें। शॉर्ट आंसर्स। ओके अंडरस्टैंड? तो चलो, ये 5 सब्जेक्ट है, ये जो नंबर इंडिकेट कर रहा है तो ये इट इज अ मिनिमम ड्यूरेशन टू शुड डिवोट आवर टाइम। ओके, जैसे हम फेज 1 में बेसिक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को कवर करेंगे तो उसके साथ हमारा सेकंड फेज स्टार्ट होगा, मेंस ओरिएंटेड फेज, रैंप अप फेज। ओके, तो इसमें हम क्या करने वाले, जीएस 1 2 3 4 के चारों सब्जेक्ट कंप्लीट करने वाले। ओके जो भी कुछ उसके जो सब्जेक्ट सब सब्जेक्ट है वो हमें क्या करना है, कवर करना। तो इस फेज का ऑब्जेक्टिव क्या है? सेकंड फेज का जो ऑब्जेक्टिव है, डिटेल स्टडी ऑफ मेंस एग्जामिनेशन। क्या? डिटेल स्टडी ऑफ मेंस एग्जामिनेशन। इसमें हमें ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ मेंस का क्या करना है, कवर करना। अंडरस्टैंड? तो इसमें मेंस इसेंशियल प्रोग्राम है स्टैटिक पे, उसके साथ मेंस के पीवाईक्यू है जो 2013 से लेके अभी तक, यस यहाँ पे हमारा 2012 तक है। उसके बाद सिलेबस चेंज हुआ तो मेंस का पैटर्न चेंज हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग की जो मेंस के पीवाईक्यू उसको हम यहीं पे करने वाले। उसके बाद मेंस ओरिएंटेड नोट्स, जैसे एक्स फैक्टर नोट्स हमने आपको शेयर किए, फिर मेंस ओरिएंटेड सेल्फ नोट्स मेकिंग एंड एसे राइटिंग। तो फर्स्ट फेज में हम शॉर्ट आंसर्स लिखे, सेकंड फेज में हम मेंस का टेस्ट लिखे, 15 मार्क 20 मार्क के क्वेश्चन, और उसके 10 मार्क 15 मार्क के क्वेश्चन और 20 मार्क के ऑप्शनल में हो गए तो उसके सब्जेक्ट टेस्ट। तो ऐसे राइटिंग, उसके बाद फिर हम ऐसे राइटिंग पे आ जाएंगे। देन मीन दैट द सस्टेनेबिलिटी ऑफ आंसर राइटिंग क्या होगी, उससे एनहांस हो जाएगी। एनहांस या ओके, चलो उसके बाद चलो नेक्स्ट वाला फेज है बूस्टर फेज। अब ये बूस्टर वाला फेज क्या है कि ये रिवीजन वाला फेज, तो हर 60 डेज में हमने एक रिवीजन रखा। ओके, जैसे आपकी पढ़ाई जैसे आगे चढ़ेगी, जैसे 60 डेज का हमारा क्या होगा, एक रिवीजन। उसमें क्या है कि जो ऐसे हम लिख रहे, राइटर लाइकर ऐसे राइट, टॉपर राइट लाइकर टॉपर ऐसे राइट, यहाँ पे ऐसे राइटिंग है, खाली बेसिक सीखना है, उसके साथ फिर क्या करना, एक अच्छे से ऐसे कैसे लिख सकते। ओके, जो 2000 आपका जो फर्स्ट फेब 2000 जो भी आपका एग्जाम का स्टार्ट होगा, एक्चुअल जहां पे हम जिस टाइम पे, मेरे हिसाब से आप 2027 का आपका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, तो उसमें प्रीलिम्स ओरिएंटेड पेज हम उस टाइम पे स्टार्ट करेंगे और स्मैश मेंस प्रीलिम्स के बाद होगा। ओके, तो यहाँ पे हम मॉडिफाई क्या करने वाले हैं, क्योंकि आपका कॉलेज का भी शेड्यूल चलता रहेगा। ओके, और 2 साल हमें क्या करना है, पढ़ाई करना है। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि हमें हमारा पेशेंस बनाए रखना होगा। ऐसे नहीं कि अभी एक 3 महीने में हमने स्टार्ट किया और फिर खत्म हो गया। ओके, तो पहले हम क्या करते हैं, पॉलिटी मॉडरेसी इकोनॉमी ज्योग्राफी एनवायरमेंट के बेसिक एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। ओके ओके, मुझे यानी कि फर्स्ट राउंड क्या होगा हमारा इसमें, बेसिक एनसीईआरटी, एनसीईआरटीज या पॉलिटी मॉडरेसी इकोनॉमी ज्योग्राफी एनवायरमेंट, बस। उसके बाद फिर उसके साइमल्टेनियसली चैप्टर वाइज एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और एनसीईआरटी खत्म होने के बाद उसके ऊपर का मेंटरशिप टेस्ट करेंगे। ओके, अब जब हमारा एक फर्स्ट ये राउंड होगा तो हमारा सेकंड राउंड होगा उसका रेफरेंस सोर्स पढ़ना है। जैसे पॉलिटी का लक्ष्मीकांत, मॉडर्न हिस्ट्री का स्पेक्ट्रम, इकोनॉमी का कोई भी एक बुक मार्केट में से जो अच्छा रहेगा वो, ज्योग्राफी का जीसी लॉन्ग और फिजिकल जीसी लॉन्ग, और एनवायरमेंट का
जो भी कुछ मार्केट में अवेलेबल हो, या फिर एक्सपेक्टर नोट्स जो भी हमारे अवेलेबल हो उसमें से। ओके, या ये फर्स्ट हमारा क्या होगा, कंप्लीट होगा। फिर हम सेकंड जैसे रेगुलर है वैसे स्टार्ट करें। ओके। ओके, तो मेरे हिसाब से लगभग मान के चलो नेक्स्ट 2 मंथ का हमारा टारगेट होगा कि एनसीईआरटी कंप्लीट करना। कंप्लीट या बिकॉज यू ऑल्सो हैव टू, आपको क्या करना है उसके साथ, उसके साथ आपको कॉलेज भी करना है। कॉलेज या। ओके, अब ये आपको समझ में है हमारा टारगेट कैसे है? इसमें कुछ डाउट है आपको? नहीं सर, नहीं, it's pretty अब much clear. सेकंड पार्ट ऑफ सेकंड एजेंडा जो है कि व्हाट कुड बी द कंपोनेंट्स ऑफ द यूएपी प्रोग्राम। ओके, सो देयर आर 5 कंपोनेंट्स ऑफ यूएपी प्रोग्राम। फर्स्ट इज द mentorship. Okay, second is the testing, third is the samachar mantra, fourth is the target setting, and fifth is the revision strategy. We will see one by one. First, target setting. What is the target setting? So there are two types of targets. One is the macro target, second is the micro target. The macro target is the phase wise target. ओके, तो मैक्रो टारगेट में क्या है कि सर्टन फेज में हम क्या कर रहे हैं, टेक्निक सीख रहे हैं। ओके, टेक्निक्स क्या कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं, और वही टेक्निक्स हमें क्या करना है, अगले वाले फेज में यूटिलाइज करना है, या फिर उसको एक बेस बनाना है। जैसे आपको पता है कि कोई भी हम जब जैसे इफ वी बिल्ड अ बिल्डिंग, तो वी हैव टू नीड सम फाउंडेशन। ओके, हमारा फाउंडेशन स्ट्रांग होगा तो उतना ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, उतनी ज्यादा लंबी बिल्डिंग खड़ी कर सकते If the basics are clear, then you हैं। have हाँ, more to go ahead. यस, सो उसके लिए फर्स्ट चीज क्या है हमारी, बेसिक कम। तो फर्स्ट फेज जैसे हमने डिस्कस किया था, फर्स्ट टारगेट जो होता है हमारा फेज वाइज टारगेट। ओके, सेकंड जो होता है टारगेट का टाइप होता है सब्जेक्ट वाइज। ओके, अब सब्जेक्ट वाइज में क्या है कि पॉलिटी, मॉडर्निटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इस सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी और टारगेट जो भी कुछ होगा वो क्या होगा, आपको सब्जेक्ट के पहले बताया जाएगा। Okay? जैसे हमने आज डिस्कशन जैसे ऑनलाइन सेशन पे लिया है, तो वैसे हम आगे सेशंस ले लेंगे वीक बाय वीक बेसिस पे, और उसमें एक सब्जेक्ट को उसका असेसमेंट होके फिर हम सेकंड सब्जेक्ट पे लेंगे। अंडरस्टैंड? तो सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी एंड टाइम टेबल आपको उस टाइम पे मिलेगा। टाइम टेबल मींस टारगेट। द सेकंड कंपोनेंट यूपी प्रोग्राम इज द रिवीजन। Okay, revision strategy. So what is our revision strategy? We are following the two types of revision. One is the daily revision, second is the weekly revision. Okay, अब आपके केस में क्या है ना कि डेली रिवीजन थोड़ा इम्पॉसिबल है, बिकॉज आपको स्टडी भी करना है, उसके रिवाइज भी करना, फिर कॉलेज भी जाना, कॉलेज का भी। तो फिर हम क्या करेंगे, खाली वीकली रिवाइज करेंगे। ओके सर। ओके, सो मंडे से लेके फ्राइडे तक आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, या फिर सैटरडे संडे आपको कॉलेज को छुट्टी रहती है। हाँ, सैटरडे संडे। Yes. तो फिर क्या कर सकते हैं, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे और वेंसडे 5 दिन हम पढ़ाई करेंगे, और फ्राइडे और सॉरी थर्सडे और फ्राइडे 2 दिन, गुरुवार और शनिवार को, गुरुवार और शुक्रवार को हम क्या करेंगे, व्हाट वी कैन डू, वी विल टेक द रिवीजन। ओके, सो सैटरडे संडे यू कैन यूटिलाइज फॉर द रीडिंग पर्पस। रीडिंग, यस, गॉट इट? yeah, so Saturday Sunday I can give more than 6 hours also because I'm Yes, totally so free. at that time you can Yeah. read the basics. Yeah, Okay, sir. तो टारगेट सेटिंग समझ में आया, रिवीजन स्ट्रेटजी समझ। Yes, sir. थर्ड कंपोनेंट है समाचार मंथन। ओके, समाचार मंथन इज एक्चुअली द करंट अफेयर इशू एनालिसिस प्रोग्राम। वीकली, जो वीकली करंट अफेयर्स इशू उसके एनालिसिस प्रोग्राम। तो आपको लाइव लेक्चर होते हैं सैटरडे संडे, यू कैन अटेंड द लाइव लेक्चर्स सैटरडे संडे। मंडे टू थर्सडे जो पीडीएफ है आपको ग्रुप में आता है, उसको क्या करना है, पढ़ना है मंडे से थर्सडे तक। फ्राइडे को क्या करना है, उसके ऊपर की टेस्ट देना, जो 5 क्वेश्चंस, राइटिंग वाले 5 क्वेश्चंस, और डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव 5 क्वेश्चन, और ऑब्जेक्टिव 20 क्वेश्चंस आप क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। okay, sir. अंडरस्टैंड? Yes, sir. आपको शेड्यूल समझ में आया समाचार मंथन का? हाँ, सैटरडे संडे क्या करना है, लाइव क्लास। लाइव लेक्चर। फिर इस सैटरडे संडे आपने लाइव लेक्चर किया, तो मंडे से लेकर थर्सडे तक आपको क्या करना है, उसका पीडीएफ पढ़ना है, PDF। और फ्राइडे को उसका टेस्ट देना है। तो एक वीक में क्या होगा हमारा, फ्राइडे टू फ्राइडे जो है उसमें क्या होगा, हमारा पूरा वो वीकली करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। कवर हो जाएगा। अंडरस्टैंड? या नेक्स्ट कंपोनेंट इज द टेस्टिंग कंपोनेंट। ओके, तो हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ टेस्ट है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट फॉर द प्रीलिम्स। ओके, एमसीक्यू, उसमें 2 टाइप के टेस्ट है, प्रीलिम्स के टेस्ट है। एक प्रीलिम्स प्राइम बेसिक टेस्ट, प्राइम प्रीलिम्स बेसिक टेस्ट,
और दूसरा एडवांस और फुल लेंथ टेस्ट। एडवांस और फुल लेंथ टेस्ट प्रीलिम्स के टाइम आप पाते हैं। ओके, हम्म चलो हम्म नेक्स्ट टाइप ऑफ टेस्ट है कि मेंस टेस्ट, मेंस का डिस्क्रिप्टिव। ओके, ओके तो उसमें स्टैटिक बेस है मेंस इसेंशियल प्रोग्राम। ओके, और जो स्टैटिक प्लस करंट अफेयर बेस है वो है स्मैश मेंस। आप यहाँ पे देख सकते हो, हम्म। यहाँ पे स्मैश मेंस वाला ये टेस्ट। ओके, यस सर। थर्ड टाइप ऑफ टेस्ट है ऐसे। ऐसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी ऐसे राइटिंग करना है, यहाँ पे भी ऐसे राइटिंग करना है, और प्रीलिम्स के बाद भी ऐसे राइटिंग करना है। अंडरस्टैंड? तो तीन टाइप के टेस्ट है। ओके, अब आते हैं मेन कंपोनेंट यूपी प्रोग्राम इज द मेंटोरशिप। द मेंटोर इज द एक्चुअली ब्रिज बिटवीन स्टूडेंट एंड द यूपीएससी एग्जाम। हमें सब बताते हैं क्या करना चाहिए, लेकिन क्या नहीं करना चाहिए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट मेंटर कैन डू। ओके, एडवाइस यू कि आप ये मत करो, इसमें टाइम चला जाएगा। ओके, चलो सो मेंटोरशिप हैज अ फोर पिलर्स। क्योंकि मेंटोरशिप पे चार पिलर्स पे। सबसे पहला वाला पिलर है इंपॉर्टेंट वाला, शेड्यूल। जो शेड्यूल हमने अभी डिस्कस किया है दैट इज द शेड्यूल। शेड्यूल क्या है कि इससे आपका फाउंडेशन बनाया रहेगा कि हमें हमारा टारगेट क्या है। ओके, एंड दैट शेड्यूल विल मेक्स यू टू रीच दी अचीव योर गोल्स इन योर लाइफ। ओके, दैट इज द शेड्यूल। शेड्यूल के साथ हम क्या करने वाले, यूपीएससी इज आस्किंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट। ओके, तो सेकंड पिलर है कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे करते हैं, बेसिक सोर्स और रेफरेंस सोर्स से। ओके, थर्ड पिलर है जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े उसका क्या होना चाहिए, इवेल्यूशन। तो थर्ड पिलर इज द इवेल्यूशन। तो इवेल्यूशन किस पे ऊपर डिपेंड है, जो सेकंड कंपोनेंट हमने डिस्कस किया था टेस्टिंग में, उसके ऊपर डिपेंड। ओके, अब फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। हम थर्ड तक तो आते हैं, इवेल्युएट करते हैं, लेकिन फीडबैक नहीं लेते। फर्स्ट फोर्थ वन इज द फीडबैक ऑन द इवेल्यूएशन। अंडरस्टैंड? यस सर। तो आपको चार कंपोनेंट समझ में आए, हम्म चार पिलर्स, सॉरी नॉट फाइव कंपोनेंट्स एंड चार पिलर्स ऑफ मेंटरशिप। शेड्यूल, कॉन्सेप्ट, इवेल्यूशन एंड फीडबैक ऑन इवेल्यूशन। अंडरस्टैंड? अभी यस तक आपको दो दो एजेंडा जो हमने डिस्कस किए वो सारे समझ में आए? आपको हाँ ऐसे लग रहा है यहाँ पे कुछ डाउट है, या फिर आपको शेड्यूल में कुछ समझ में नहीं आया, या फिर इसमें कुछ, वो भी पूछो आप। जैसे कि सर ये वाली चीज मुझे समझ में नहीं आई, आप बता दो इसके बारे में जरा। नहीं सर, वो सर मैं बस इतना पूछी लाइक स्केड्यूल, लाइक इट इज गिवन प्रॉपर डेज फॉर इट, यस बट यस यस व्हाट सर, इफ लाइक वो देयर नहीं, इज लाइक issue देखो and like understanding and we like take more than 1 day or 2 day extra like चलेगा, ये मैं वही बात बता रहा हूँ आपको। शेड्यूल मीन्स क्या, एक प्रॉपर टाइमलाइन रहती है हमारे सामने कि भाई इतने टाइम में हमें वो चीज कंप्लीट करनी। हम्म अब उसके बाद जो होता है टारगेट आता है ना, सब्जेक्चुअल टारगेट। आप कुछ चीज आपको सही, जैसे आपका पॉलिटी अच्छा है तो पॉलिटी कम करने में आपको कम टाइम लगेगा, लेकिन हाँ साइमल्टेनियसली इकोनॉमी कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, उसमें आपको पढ़ने को ज्यादा टाइम लगता है, तो उसमें ज्यादा दिए लगेगा। दैट इज डिपेंड ऑन द स्टूडेंट, इट इज नॉट लाइक दैट कि आपको ये ओके 15 दिन में करना है, 15 दिन में कुछ हाँ एक्सटेंड होगा। कुछ हेल्थ प्रायोरिटीज भी आती है, कुछ प्रॉब्लम्स आ गए तो फिर हम क्या कर सकते हैं, उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। पर फॉर दैट पर्पज यू नीड टू इन्फॉर्म योर मेंटर बिफोर दैट। ओके ओके बट सर। यस, यस चलो थर्ड एजेंडा जो हमारा डिस्कशन का, उसके बारे में बात करते हैं। व्हाट कुड बी द सोर्सेस फॉर द फेथ्स। ओके, सो आई हैव प्रोवाइडेड यू द सोर्स लिस्ट हियर, यू कैन यस गो थ्रू दैट। ओके, उस सोर्स लिस्ट में जो भी आपको ऐसे लगेगा कि सर ये सोर्स मुझे मेरे जगह, यहाँ इसकी जगह पे मेरे पास दूसरा सोर्स है, तो भी चलेगा, लेकिन एटलीस्ट दैट सोर्स शुड कवर 80 to 90% ऑफ सिलेबस ऑफ यूपीएससी। हम्म ओके, ओके तभी सर। उसको करने में या फिर लेने में, या पढ़ने में मजा होगा। ठीक है, हम्म चलो अब उसके साथ हमने आपको क्या किया कि टेलीग्राम लिंक पे, टेलीग्राम पे, इस पे आपको एक 2025 का प्रोग्राम कैसे एक्सेसिबल करना है उसका वीडियो गाइडलाइन भेजा है। उसके बाद सेल्फ इवेल्यूशन स्ट्रैटेजी एंड रिवीजन स्ट्रैटेजी। रिवीजन स्ट्रैटेजी हमने अभी डिस्कस की। सेल्फ इवेल्यूशन स्ट्रैटेजी आफ्टर 10 to 15 days आई चेंज। ओके, ओके हाँ। उसके बाद आते हैं कि समाचार मंथन, जैसे आपने समाचार मंथन लिखा, लेकिन उसको इवेल्यूट कैसे करना है। ओके, लिखने के बाद ये प्रोसीजर आपको फॉलो करनी है। ये मेल आईडी पे उस समाचार मंथन जो लिखा है उसको पीडीएफ करके भेजना है। देन आपको क्या उसके ऊपर फीडबैक, ठीक है, ओके चेक हो गया। एक ईयरली प्लान जो हमने अभी आपको दिखा है वो हमने यहाँ पे भेजा है। ठीक है,
Yes, sir. Got it? The third agenda is done. Okay. Let's move on to the last agenda. What is that? Last agenda is the what could be the target and what could be the target and how to read that target. Okay. So first of all, I'm telling you the X factor notes provided to you, the annotated NCRTs is provided to you, the Samachar Manthan is provided. Whatever the things is there, it is all means आपने जो प्रोग्राम लिया उसके हिसाब से आपके पोर्टल में है. ओके. आपको जो भी कुछ उसमें दिक्कत आएगी तो आप पहले मेंटर को बता दो. तो एनोटेड एनसीईआरटी का मतलब क्या है सबसे. तो हमने क्या किया उस एनसीईआरटी को 5 इंक से 5 कलर से क्या किया हाईलाइट करके रखा है. ओके. Okay. जैसे ग्रीन कलर मीन्स क्या है कि उसके ऊपर पीवाईक्यूज आ सकते. ओके. ब्लू कलर मीन इसके ऊपर पीवाईक्यूज नहीं आए लेकिन ये पीवाईक्यू के अगल बगल वाला एरिया माइट बी आस्क क्वेश्चन, यानी क्या हाई पोटेंशियल एरिया. Important areas. पिंक कलर मीन्स क्या फैक्चुअल स्टेटमेंट्स लाइक ईयर नेम. ओके. Yeah. पीच कलर इज फॉर द डेफिनेशन. कुछ टर्म्स और उसके डेफिनेशन एनसीईआरटी में दिए, हमें प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं कभी कभी क्वेश्चन. ओके. और येलो means the extreme means those are the words extreme but are true. ओके. हमें ऐसे लगता है कि ये वेग हो सकता है लेकिन वो सही होता है. ओके. चलो अब उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने आपको एक 4 पॉइंट्स से क्या किया है कि हाउ टू रीड द एनसीईआरटी. ये हमने आपको शेयर करके रखा है. Yes. यस. फर्स्ट क्या करना है हमें, रीड द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर, then write down the heading and subheading of the chapter. Third, read the chapter and make the key point. And fourth is the solve the exercise. Also, the day wise distribution भी हमने आपको प्रोवाइड किया है 4 और 4 8 दिन का. ओके. चैप्टर के नंबर्स वगैरह. अब मैं आपको ये बताता हूँ कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, कैसे इस चीज को करने में इम्पोर्टेंस क्या है. ओके. तो उससे क्या मीन्स हमें ये जैसे कि कोई भी एक हम एसओपी रखते हैं तो उससे क्या होता है कि हमें आउटपुट जनरेट करना. तो हम एनसीईआरटी क्यों पढ़ते हैं. For the basic, like the यस. सबसे पहले क्या, टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट फर्स्ट. और सेकंड क्या होता है कि टू अंडरस्टैंड टू लर्न द बेसिक वोकैबुलरी ऑफ द सब्जेक्ट. दैट इज सेकंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. आपको बेसिक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग तो एनसीईआरटी से, लेकिन कुछ हमें मेंस के आंसर्स जब लिखते हैं तो उसमें जो भी कुछ वर्ड है पॉलिटी के वर्ड्स जो होते हैं तो पॉलिटी के आंसर्स में यूज करना है. हिस्ट्री वाले वर्ड्स होते हैं तो हिस्ट्री वाले आंसर्स में हमें. जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि 3 4 चीजें, जैसे फिजिकल एडमिनिस्ट्रेशन वाला वर्ड है, फिजिकल बैलेंस है, फिजिकल कंसोलिडेशन है. ये सारी चीजें क्या है, इसमें माइनर माइनर डिफरेंस है, माइनर माइनर है. लेकिन फिजिकल एडमिनिस्ट्रेशन शब्द ये जो वर्ड है ये आपको पेपर 2 में यूज करना है. ओके. फिजिकल बैलेंस जो वर्ड है ये पेपर 3 में करना है. the keywords कहाँ कहाँ. फिजिकल कंसोलिडेशन पेपर 3 में करना है. ओके. लेकिन ऑलमोस्ट तीनों का भी मीनिंग नियरली सेम. ओके. तो क्या है, फर्स्ट रीड द इंट्रोडक्शन. आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू विल लर्न. क्या लर्न करोगे, व्हाट अ कॉन्स्टिट्यूशन मींस, what a constitution does to society, how constitution governs the allocation of powers in the society, and what was the way in which constitution of India was made. Okay. 4 पॉइंट्स आपको नोट्स मेकिंग को भी मिल गए और उस क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करने को भी. तो नेक्स्ट वन, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन. हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है. बिकॉज इट अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स. Okay, why do we need a constitution? Because it gives specification of decision making powers between different organs of the government. Why do we need a constitution? Because it limits the powers of government. It limits the powers of government. Why do we need a constitution? Because it instils aspiration and goals of the society. And last one, it gives fundamental identity to the people. Understand? हेडिंग सब हेडिंग से हमें आंसर्स आते हैं या फिर उसको क्या कर सकते हैं अंडरस्टैंड करते हैं. सेकंड, द ऑथोरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. फिर ऑथोरिटी वाला उसके नीचे होगा. ओके. तो हम क्या कर रहे हैं कि इजी वे से उस चीज को सीख के ले रहे हैं. ओके. अब देखो थर्ड पॉइंट के चैप्टर को रीड करना है, की पॉइंट्स नोट करना है. जैसे आप फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ पीपल वाला पढ़ रहे हैं तो उसमें चैप्टर में नोट्स में या फिर हम की पॉइंट्स कैसे कर सकते हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आइडेंटिटी. First is the collective identity, means we are governed by one single constitution,
means we are governed by the Indian constitution, that is our collective identity. Second is the political identity. Okay, we have agreed certain basic norms and principles that constitute our one basic political identity. Okay, they say so we are people from, means I am a people from, or you are also people, or you are also people from, we are also people from the sovereign socialist secular democratic republic India. Okay, ये बेसिक नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल्स हमने क्या किया, एग्री किया. थर्ड जो है मोरल आइडेंटिटी, मींस मोरल आइडेंटिटी इज बेस्ड ऑन सम फंडामेंटल वैल्यूज. ओके, मींस वी आर अ ह्यूमन, वी शुड ट्रीट ह्यूमन एज अ ह्यूमन बीइंग that constitute our the that constitute our the moral identity. Understand? Yes, sir. तो ऐसे आप की पॉइंट्स क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं. अब जब आपका चैप्टर रीड होगा, की पॉइंट नोट्स हो गए, तो आपको क्या करना है, उस चैप्टर के ऊपर की एक्सरसाइज सॉल्व करना. ओके, ऐसे नहीं करना कि चैप्टर एक बार सारे चैप्टर पढ़ लेना, फिर हेडिंग सब हेडिंग, फिर उसको ये करना, ऐसे मत करो. ओके, एक चैप्टर की 4 प्रोसीजर कंप्लीट करके ही आपको आगे जाना है. ओके, वन बाय वन. तो एक्सरसाइज जब आप सॉल्व करोगे, ऑब्जेक्टिव को यहीं पे कर दो, डिस्क्रिप्टिव को आप सेपरेट पेज पेज पे सॉल्व कर सकते हैं, या फिर इसका जो आंसर्स होगा आप यहीं पे बुलेट पॉइंट्स में लिख दो. जिस क्वेश्चंस का आंसर्स आपको नहीं आ रहा है, इसका मतलब है आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया. मींस देयर इज अ कॉन्सेप्चुअल लैकुना इन योर अंडरस्टैंडिंग. ओके, अंडरस्टैंड. तो ये था हमारा, आपको समझ में आया हाँ सर. ऐसे करना है, या फिर टारगेट भी आपको समझ में आया नेक्स्ट 1 वीक का. ओके, अब ये जब आप करोगे तो डेली आपको मुझे मैसेज भेजना है कि सर आई हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक. ओके, खाली ये बताना नहीं कि सर ओनली कंप्लीटेड, आपने जो भी कंप्लीट किया होगा उसका मुझे पीडीएफ फॉर्मेट में आइदर नोट्स भेज दो, हेडिंग सब हेडिंग भेज दो, या फिर एक्सरसाइज भेज दो जो सर. बट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू द सॉल्व्ड एक्सरसाइज रादर देन एनी अदर. तो उससे उसको हम बोलते हैं प्रूफ ऑफ सबमिशन. ओके, अब इनिशियल एनसीईआरटी में आपको क्या है, इनिशियल एनसीईआरटी में आपको ये नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस चैप्टर वाइज नहीं है. तो आपको जैसे ही एक्सरसाइज सॉल्व करोगे वो मुझे भेज दो, और उसके साथ फिर जब पूरा बुक पढ़ के होगा तो फिर हम क्या करेंगे, उसकी टेस्ट सॉल्व करेंगे. अच्छा, ओके सर. एंड सर वो जो मेंटरशिप टेस्ट है वो चैप्टर वाइज अभी करने हैं कि पूरा जब एक बुक खत्म होके देन? मेंटरशिप टेस्ट 2 ही है, वो पूरा चैप्टर खत्म करने के बाद सॉल्व करना है, और पूरा बुक खत्म करने के बाद सॉल्व करना है. एनसीईआरटी का बता रहा हूँ मैं. हाँ, like Indian Constitution at Work has 10 chapters. So after completing those 10, then we have to attempt the mentorship test for that. Okay? Okay, sir. Understand? अब आपको समझ में आया सारी चीज जैसे? हाँ सर. तो इस वीक में अभी सैटरडे संडे तो चला गया, अभी आप समाचार मंथन मत करो. समाचार मंथन कमिंग सैटरडे संडे से हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे. ओके, अभी क्या कर लो, आप खाली एनसीईआरटी कर लो और डेली मुझे प्रूफ ऑफ सबमिशन भेज देगा. Okay, so like today I will complete the second chapter also. और वीकली हमारा मीटिंग होगा, आइदर फोन कॉल पे होगा, आइदर जूम होगा, या फिर गूगल मीट सेशन. ओके, जिससे एज पर फिजिबिलिटी ऑफ द मेंटर्स एंड द स्टूडेंट वी कैन कनेक्ट विद ईच अदर. बट वीकली मिनिमम एक बार हमें कॉल करना ही है. ठीक है सर. यस सर. एनी डाउट होगी? हाँ सर, like while reading the chapter, if we have some doubt in some terms or some sentence, then what about like? हाँ, तो उसको फोटो निकाल के आप मेंटर को टेलीग्राम पे भेज दो. अच्छा, ठीक है. तो आई विल रिप्लाई यू दैट इन दैट ग्रुप आल्सो, मींस ग्रुप पे भी भेज दिया तो भी चलेगा, वैसे कुछ नहीं. आप दूसरे के लोगों ने जो क्वेश्चन पूछे उसके आंसर दे दो, आपको वो आंसर दे देंगे, वैसे कुछ. ओके, ठीक है सर. ओके, like I have read the chapter and I have marked some points which I haven't, like there are some terms which are to grasp कर रहे हैं, वैसे कुछ प्रॉब्लम आप. ठीक है सर. ओके, बाय, ऑल द बेस्ट. ओके, थैंक यू सर.